قرآن مجید کا 24واں سورہ سورہ نور۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں نازل کی ہیں کہ شاید تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی مربت کا شکار نہ ہو جانا اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے۔ اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت زانی مرد یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرے گی کہ یہ صاحبان ایمان پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ فراہم نہیں کرتے ہیں، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا کہ یہ لوگ سراسر فاسق ہیں، علاوہ ان افراد کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیں کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے، تو ان کی اپنی گواہی 4 گواہوں کے برابر ہوگی، اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر عورت سے بھی حد برطرف ہو سکتی ہے اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ یہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ صادقین میں سے ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور وہ توبہ قبول کرنے والا صاحب حکمت نہ ہوتا تو اس تہمت کا انجام بہت برا ہوگا۔ بے شک جن لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی وہ تمہیں میں سے ایک گروہ تھا، تم اسے اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں خیر ہے، اور ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے خود کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تہمت کو سنا تھا تو مومنین و مومنات اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ 4 گواہ بھی لے آتے، اور جب گواہ نہیں لے آئے تو یہ اللہ کے نزدیک بالکل جھوٹے ہیں۔ اور اگر خدا کا فضل دنیا و آخرت میں اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو چرچا تم نے کیا تھا اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب گرفت میں لے لیتا۔ جب تم اپنی زبان سے چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، اور تم اسے بہت معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تھا تو کہتے کہ ہمیں ایسی بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، خدایا تو پاک و بے نیاز ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اب ایسی حرکت دوبارہ ہرگز نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، صرف تم نہیں جانتے ہو۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور وہ شفیق اور مہربان نہ ہوتا، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کہ جو شیطان کے قدم بقدم چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور وہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کے حال دل کا جاننے والا ہے۔ اور خبردار تم میں سے کوئی شخص بھی جسے خدا نے فضل اور وسعت عطا کی ہے یہ قسم نہ کھا لے کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے گا۔ ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یقیناً جو لوگ پاک باز اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔
उस दिन खुदा सबको पूरा पूरा बदला देगा और लोगों को मालूम हो जाएगा कि खुदा यकीनन बरहक और हक का जाहिर करने वाला है। खबीस चीजें खबीस लोगों के लिए हैं और खबीस अफराद खबीस बातों के लिए हैं, और पाकीज़ा बातें पाकीज़ा लोगों के लिए हैं और पाकीज़ा अफराद पाकीज़ा बातों के लिए हैं। ये पाकीज़ा लोग खबीस लोगों के इत्तिहामात से पाक व पाकीज़ा हैं और इनके लिए मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त रिज़्क़ है। ईमान वालों, खबरदार, अपने घरों के अलावा किसी के घर में दाखिल ना होना जब तक के साहिब खाना से इजाजत ना ले लो और उन्हें सलाम ना कर लो। यही तुम्हारे हक में बेहतर है कि शायद तुम इससे नसीहत हासिल कर सको। फिर अगर घर में कोई न मिले तो उस वक्त तक दाखिल ना होना जब तक इजाजत ना मिल जाए, और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस चले जाना, कि यही तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा अम्र है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है कि तुम ऐसे मकानात में जो गैर आबाद हैं और जिनमें तुम्हारा कोई सामान है दाखिल हो जाओ, और अल्लाह उसको भी जानता है जिसका तुम इजहार करते हो और उसको भी जानता है जिसकी तुम पर्दापोशी करते हो। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें कि यही ज्यादा पाकीज़ा बात है, और बेशक अल्लाह इनके कारोबार से खूब बाखबर है। और मोमिनात से कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करें और अपनी जीनत का इजहार ना करें, अलावा इसके जो अस खुद जाहिर है, और अपने दुपट्टे को अपने गिरेबान पर रखें और अपनी जीनत को अपने बाप दादा, शौहर, शौहर के बाप दादा, अपनी औलाद और अपने शौहर की औलाद, अपने भाई और भाइयों की औलाद और बहनों की औलाद, और अपनी औरतों और अपने गुलाम और कनीजों और ऐसे ताबे अफराद जिनमें औरत की तरफ से कोई ख्वाहिश नहीं रह गई है, और वो बच्चे जो औरतों के पर्दे की बात से कोई सरोकार नहीं रखते हैं, इन सब के अलावा किसी पर जाहिर ना करें। और खबरदार, अपने पांव पटक कर ना चले कि जिस जीनत को छुपाए हुए हैं इसका इजहार हो जाए। और साहिबान ईमान, तुम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहो कि शायद इसी तरह तुम्हें फलाह और निजात हासिल हो जाए। और अपने गैर शादीशुदा आजाद अफराद और अपने गुलामों और कनीजों में से बासलाहियत अफराद के निकाह का एहतमाम करो कि अगर वो फकीर भी होंगे तो खुदा अपने फजल करम से इन्हें मालदार बना देगा कि खुदा बड़ी वुसअत वाला और साहिब इल्म है। और जो लोग निकाह की वुसअत नहीं रखते हैं वो भी अपनी इफ़्फ़त का तहफ़्फ़ुज़ करें, यहां तक कि खुदा अपने फर्ज से इन्हें गनी बना दे। और जो गुलाम कनीज मुकातिबत के तलबगार हैं, इनमें खैर देखो तो इनसे मुकातिबत कर लो, बल्कि जो माल खुदा ने तुम्हें दे रखा है इसमें से कुछ इन्हें भी दे दो। और खबरदार, अपनी कनीजों को अगर वो पाक दामनी की ख्वाहिशमंद है तो ज़िना पर मजबूर ना करना कि इनसे जिंदगानी दुनिया का फायदा हासिल करना चाहो, कि जो भी इन्हें मजबूर करेगा खुदा मजबूरी के बाद इन औरतों के हक में बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। और हमने तुम्हारी तरफ अपनी खुली हुई निशानियां और तुमसे पहले गुजर जाने वालों की मिसाल और साहिबान तक़वा के लिए नसीहत का सामान नाजिल किया है। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल उस ताख की है जिसमें चराग हो, और चराग शीशे की कंदील में हो, और कंदील एक जगमगाते सितारे के मानिंद हो जो जैतून के बाबरकत दरख्त से रोशन किया जाए, जो न मशरिक वाला हो न मगरिब वाला, और करीब है कि उसका रोगन भड़क उठे चाहे उसे आग मस भी ना करे। ये नूर बालाए नूर है, और अल्लाह अपने नूर के लिए जिसे चाहता है हिदायत दे देता है, और इसी तरह मिसालें बयान करता है, और वो हर शय का जानने वाला है। ये चिराग इन घरों में है जिनके बारे में खुदा का हुक्म है कि उनकी बुलंदी का एतराफ किया जाए, और इनमें उसके नाम का जिक्र किया जाए कि इन घरों में सुबह शाम उसकी तस्बीह करने वाले हैं। वो मर्द जिन्हें कारोबार या दीगर खरीद और फरोख्त जिक्र खुदा, क़याम नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं कर सकती, ये उस दिन से डरते हैं जिस दिन के हौल से दिल और निगाहें सब उलट जाएंगी, ताकि खुदा इन्हें इनके बेहतरीन आमाल की जजा दे सके और अपने फज़ल से मजीद इजाफा कर सके। और खुदा जिसे चाहता है
रिस्क बेहिसाब अता करता है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया, इनके अमाल उस रेत के मानिंद हैं जो चटिल मैदान में हो और प्यासा उसे देखकर पानी तसव्वुर करे और जब उसके करीब पहुंचे तो कुछ ना पाए, बल्कि उस खुदा को पाए जो इसका पूरा पूरा हिसाब कर दे कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। या इन अमाल की मिसाल उस गहरे दरिया की तारीकियों की है जिसे एक के ऊपर एक लहर ढांक ले और उसके ऊपर तह पतह बादल भी हों कि जब वो अपने हाथ को निकाले तो तारीकी की बिना पर कुछ नजर न आए, और जिसके लिए खुदा नूर ना करार दे उसके लिए कोई नूर नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह के लिए जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात और फजा के सब बस्ता तायर सब तस्बीह कर रहे हैं और सब अपनी अपनी नमाज और तस्बीह से बाखबर है, और अल्लाह भी इनके अमाल से खूब बाखबर है। और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की मिल्कियत है और उसी की तरफ सबकी बाज़गश्त है। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही अब्र को चलाता है और फिर इन्हें आपस में जोड़कर तह बतह बना देता है। फिर तुम देखोगे कि इसके दरमियान से बारिश निकल रही है और वो उसे आसमान से बर्फ के पहाड़ों के दरमियान से बरसाता है, फिर जिस तक चाहता है पहुंचा देता है और जिसकी तरफ से चाहता है मोड़ देता है। उसकी बिजली की चमक इतनी तेज है कि करीब है कि आंखों की बीनाई खत्म कर दे। अल्लाह ही रात और दिन को उलट पुलट करता रहता है और यकीनन इसमें साहिबाने बसारत के लिए सामान इबरत है। और अल्लाह ही ने हर जमीन पर चलने वाले को पानी से पैदा किया है, फिर इनमें से बास पेट के बल चलते हैं और बास दो पैरों पर चलते हैं और बास चारों हाथ पैर से चलते हैं। और अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है कि वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। यकीनन हमने वाज़ेह करने वाली आयतें नाज़िल की हैं और अल्लाह जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे देता है। और ये लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आए हैं और इनकी इताअत की है, और उसके बाद इनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है और ये वाकईन साहिबाने ईमान नहीं है। और जब इन्हें खुदा और रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि वो इनके दरमियान फैसला कर दें, तो इनमें से एक फरीक किनारा कश हो जाता है। हालांकि अगर हक इनके साथ होता तो ये सर झुकाए हुए चले आते। तो क्या इनके दिलों में कुफ्र की बीमारी है, या ये शक में मुब्तला हो गए हैं, या इन्हें ये खौफ है कि खुदा और रसूल इन पर जुल्म करेंगे? हालांकि हकीकत ये है कि ये लोग खुद ही जालिमीन हैं। मोमिनीन को तो खुदा और रसूल की तरफ बुलाया जाता है कि वो फैसला करेंगे, तो इनका कौल सिर्फ ये होता है कि हमने सुना और इताअत की, और यही लोग दर हकीकत फलाह पाने वाले हैं। और जो भी अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा और इसके दिल में खौफ खुदा होगा और वो परहेजगारी इख्तियार करेगा तो वो ही कामयाब कहा जाएगा। और इन लोगों ने बाकायदा कसम खाई है कि आप हुक्म दे देंगे तो ये घर से बाहर निकल जाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि कसम की जरूरत नहीं है। उमूमी कानून के मुताबिक इताअत काफी है कि यकीनन अल्लाह इन अमाल से बाखबर है जो तुम लोग अंजाम दे रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। फिर अगर इन्हिराफ करोगे तो रसूल पर वो जिम्मेदारी है जो उसके जिम्मे रखी गई है, और तुम पर वो मसूलियत है जो तुम्हारे जिम्मे रखी गई है। और अगर तुम इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे वाज़ेह तबलीग के सिवा और कुछ नहीं है। अल्लाह ने तुम में से साहिबाने ईमान व अमल सालेह से वादा किया है कि इन्हें रूए जमीन में इसी तरह अपना खलीफा बनाएगा जिस तरह पहले वालों को बनाया है, और इनके लिए इस दीन को गालिब बनाएगा जिसे इनके लिए पसंदीदा करार दिया है, और इनके खौफ को अमन से तब्दील कर देगा कि वो सब सिर्फ मेरी इबादत करेंगे और किसी तरह का शिर्क ना करेंगे। और इसके बाद भी कोई काफिर हो जाए तो दर हकीकत वही लोग फासिक और बदकिरदार हैं। और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो कि शायद इसी तरह तुम्हारे हाल पर रहम किया जाए। खबरदार ये ख्याल ना करना कि कुफ्र इख्तियार करने वाले जमीन में हमको आजिज कर देने वाले हैं। इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बदतरीन अंजाम है। ईमान वालों, तुम्हारे गुलाम कनीज और वो बच्चे जो अभी सने बुलूग को नहीं पहुंचे हैं, इन सबको चाहिए कि तुम्हारे पास दाखिल होने के लिए
3 औकात में इजाजत लें। नमाज सुबह से पहले और दोपहर के बाद जब तुम कपड़े उतार कर आराम करते हो, और नमाज इशा के बाद। ये 3 औकात पर्दे के हैं। इसके बाद तुम्हारे लिए या इनके लिए कोई हर्ज नहीं है कि एक दूसरे के पास चक्कर लगाते रहें कि अल्लाह इसी तरह अपनी आयतों को वाज़े करके बयान करता है, और बेशक अल्लाह हर शय का जानने वाला और साहिब हिकमत है। और जब तुम्हारे बच्चे हद्दे बुलूग को पहुंच जाएं, तो वो भी इसी तरह इजाजत लें जिस तरह पहले वाले इजाजत लिया करते थे। परवरदिगार इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को वाज़े करके बयान करता है कि वो साहिब इल्म भी है और साहिब हिकमत भी है। और ज़ईफी से बैठ रहने वाली औरतें जिन्हें निकाह से कोई दिलचस्पी नहीं है, इनके लिए कोई हरज नहीं है कि वो अपने ज़ाहिरी कपड़ों को अलग कर दें, बशर्ते कि ज़ीनत की नुमाइश ना करें, और वो भी इफ़्फ़त का तहफ़्फ़ुज़ करती रहें कि यही इनके हक में भी बेहतर है। और अल्लाह सबके सुनने वाला और सबका हाल जानने वाला है। नाबीना के लिए कोई हरज नहीं है, और लगड़े आदमी के लिए भी कोई हरज नहीं है, और मरीज के लिए भी कोई ऐब नहीं है, और खुद तुम्हारे लिए भी कोई गुनाह नहीं है कि अपने घरों से या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माँ और नानी दादी के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फुफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या जिन घरों की कुंजियां तुम्हारे इख्तियार में हैं या अपने दोस्तों के घरों से खाना खा लो। और तुम्हारे लिए इसमें भी कोई हरज नहीं है कि सब मिलकर खाओ या मुतफर्रिक तरीके से खाओ। बस जब घरों में दाखिल हो तो कम अज कम अपने ही ऊपर सलाम कर लो कि ये परवरदिगार की तरफ से निहायत ही मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। और परवरदिगार इसी तरह आयतों को वाज़े तरीके से बयान करता है कि शायद तुम अक्ल से काम ले सको। मोमिनीन सिर्फ वो अफराद हैं जो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हों, और जब किसी इज्तिमाई काम में मसरूफ हों तो उस वक्त तक कहीं न जाएं जब तक इजाजत हासिल ना हो जाए। बेशक जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी खास हालत के लिए इजाजत तलब करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको चाहे इजाजत दे दें, और इनके हक में अल्लाह से इस्तग़फ़ार भी करें कि अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। मुसलमानों, खबरदार, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ना पुकारा करो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अल्लाह इन लोगों को खूब जानता है जो तुम में से खामोशी से खिसक जाते हैं। लिहाजा जो लोग हुक्म खुदा की मुखालिफत करते हैं वो इस अम्र से डरे कि इन तक कोई फितना पहुंच जाए या कोई दर्दनाक अजाब नाजिल हो जाए। और याद रखो कि अल्लाह ही के लिए जमीन व आसमान की कुल कायनात है, और वो तुम्हारे हालात को खूब जानता है। और जिस दिन सब उसकी बारगाह में पलटा कर लाए जाएंगे वो सबको उनके अमाल के बारे में बता देगा कि वो हर शय का जानने वाला है।